ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ میں اپنے گھر کے برآمدے میں کھڑی ہوئی تھی، میری نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ کہنے کو تو ہمارے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ابا نے بے وجہ ہی ہمارے سر درد کے لیے ایک کتا پالا ہوا تھا۔ میں اس کتے کو آج پہلی بار غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتا عام کتوں جیسا ہرگز نہیں تھا۔ اونچا، لمبا قد، بھاری جسامت، بعض اوقات تو وہ کتا نہیں بلکہ شیر لگتا تھا۔ گھر میں ہم سب ہی اس سے بے خوف تھے کیونکہ وہ بہت چھوٹا سا تھا تب ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ نہ ہی ہمیں دیکھ کر کبھی بھونکتا تھا، نہ ہی کبھی ہمیں کاٹتا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ وفادار تھا اور اس کی وجہ سے وہ ہماری بھی عزت کرتا تھا۔ لیکن آج اس کتے کو دیکھنے کا میرا ہی نظریہ الگ سا تھا۔ جو بات اماں نے آج کہی تھی وہ میرے دماغ میں نقش ہو گئی تھی۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات چل رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر اس بات کی بھنک بھی میری بہنوں کو پڑی وہ تو لوگ میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچیں گی، وہ کہ آپ ہی کیسی کیسی حرکتیں کر رہی ہے۔ لیکن اس پہر میرے جسم میں ایک ایسی آگ مچی ہوئی تھی جس کو ٹھنڈا کرنا میرے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ اگر میں اس کو ٹھنڈا نہیں کرتی تو میں اپنی ہی ساگ میں خود ہی جل کر بھسم ہو جاتی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنے آپ سے بہت پیار کرتی تھی، میں اپنے آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ میرے قدم دھیرے دھیرے اس کتے کے پاس بڑھنے لگے تھے۔ ویسے عموماً کتے تو اپنے قریب کسی کو آتا ہوا دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا پالتو کتا تھا، اسی لیے ہم سے کوئی آواز پیدا نہیں اس نے کی تھی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، اسی لیے گھر میں سب لوگ سو رہے تھے۔ میرا دل بہت برے طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ میرا ایک قدم من بھاری کا ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی جو میں کرنے والی ہوں اس کے بعد شاید مجھے معافی نہیں ملے گی، لیکن اس وقت میں اس قدر اضطرابی کیفیت کا شکار تھی کہ اگر میں یہ نہ کرتی تو میں اپنی اس بے وجہ کی آگ میں جل کر بھسم ہو جاتی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کتے کے پاس آ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ آج رات کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اسی لیے میں بھوکی تھی۔ میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا اور جسم میں بھی جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، یہ جو جسم کی آگ ہوتی ہے یہ پیٹ کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے اس کتے کے قریب بیٹھ کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے دھیرے میرا ہاتھ نیچے جاتا جا رہا تھا۔ میں اپنے ساتھ جانتی تھی بہت غلط کرنے والی ہوں، لیکن اس پہر مجھے کچھ بھی کر کے اپنی اس آگ کو بجھانا تھا۔ لیکن میں اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ کتا مجھ سے زیادہ اس چیز کے لیے ترس رہا ہے۔ جیسے ہی میرا ہاتھ نیچے کی طرف گیا تھا تو وہ کتا میرے ساتھ خود ہی بدفعلی کرنا شروع کر چکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسان اور ایک جانور نے آپس میں ملاپ کر لیا تھا، جس کے باعث میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میرا جسم بہت برے طریقے سے کانپ رہا تھا، لیکن اس پہر مجھے صرف اور صرف اپنے آپ کو لذت پہنچانی تھی، اسی لیے میں اس حد تک چلی گئی تھی جہاں پر جانا ایک انسان کو زیب نہیں دیتا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں نے ڈھال ہو کر اس کتے کے پاس گئی اور گر گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال کر کمرے میں آ کر صاف ہو کر باہر آئی تو میری چھوٹی بہن مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپی اب باہر کیا کر رہی تھی؟ اور اب باہر سے آنے کے بعد سیدھا باتھ روم میں کیوں گئی؟ یہ مجھ سے چھوٹی والی تھی، اسی لیے کافی سمجھدار تھی، یہ چیزوں کو بہت جلد محسوس کر لیتی تھی۔ میں اس کے سوال سے یکدم ہی گڑبڑا گئی تھی اور سر اٹھا کر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو بس باہر ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی، حاجت محسوس ہوئی تو واش روم چلی گئی، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ میں اس کو الٹا ڈانٹ کر چپ کروا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے سب کچھ کرتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھی اور کچھ سوچ کر کہنے لگی، آپ بھی آپ جو یہ باہر کر کے آئی ہیں شاید یہ غلط ہے۔ آپ جانتی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں اور عورتوں کے لیے مرد بنائے ہیں، اسی طریقے سے جانوروں کے لیے بھی ان کے ہم جنس بنائے گئے ہیں، تو آپ ایسا کام کیوں کر رہی ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتا؟ میری بہن کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے نیلم کو دیکھا اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہاری باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی ہوں، کیا تم نے مجھے کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسے نظریں جھکا کر سر کو ہلکی سی جنبش دی اور کہنے لگی، میں نے آپ کے ہر فعل سے واقف رہتی ہوں، میں آپ پر کی پرچھائی ہوں، آپ جانتی ہیں نا کہ ہم دونوں جڑواں ہیں، بس چند منٹ کا فرق ہے، لیکن بڑی ہونے کی وجہ سے ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا جو کام آپ کر کے آئی ہیں وہ غلط ہے۔ میں نے نیلم کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگی، نیلم تو جانتی ہے نا ہم سب کی عمر اب شادی والی ہے،
लेकिन अम्मा अब्बा हमारी शादी करवाना ही नहीं चाहते। तो मैं क्या करती? बस इसीलिए मैं अपने जज्बात काबू में नहीं कर पाई थी और इस जानवर के साथ ही मैंने मिलाप कर लिया था। मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और दोबारा ये काम नहीं करूँगी। नीलम ने जब ये सुना तो कुछ सोचकर कहने लगी, आप भी इस कुत्ते के साथ ये सब कुछ करके आपको कैसा महसूस हो रहा था? उसके सवाल से मुझे यकदम ही झटका लगा था और मैंने हैरान होकर नीलम की तरफ देखा था, जबकि उसकी आंखें की चमक ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो ये सब कुछ करना चाहती है। मैंने सर को नफ़ी में हिलाया और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, हरगिज़ नहीं नीलम, तुम छोटी हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं भी ये गलती करके पछता रही हूँ। लेकिन नीलम मेरे साथ मजीद चिपकती हुई कहने लगी, कब तक हम एक दूसरे से लज्जत महसूस करेंगे? मैं भी ये मज़ा चखना चाहती हूँ जो आप कुत्ते के साथ करके आई हैं। मैंने आपको मना करना चाहा लेकिन वो बज़िद थी और आखिर में उसने मुझे अम्मा अब्बा की धमकी दे दी थी कि अगर मैंने उसको ये नहीं करने दिया तो वो अम्मा अब्बा को इस कारनामे के बारे में बता देगी। जबकि मैं उसकी बातें सुनकर डर गई थी। हम दोनों अभी इस कुत्ते की तरफ जाते कि पीछे ही हमारी बहनें भी खड़ी हुई हमारी तमाम तर बातें सुन चुकी थी। वो दोनों तो काफी छोटी थी, लेकिन हम दोनों की बातों से वो इतना ज्यादा जज्बात में बह गई थी कि उन दोनों ने भी ये हरकत करने की जिद बांध ली थी और हम भी ये करके ही दम लेंगे। जबकि नीलम को ये सब कुछ एक एडवेंचर लग रहा था, इसीलिए उसने फौरन ही इन दोनों को भी अपने साथ लिया और इस कुत्ते के करीब पहुंच चुके थे। जबकि वो कुत्ता मुझे देखते ही मेरी तरफ लपकने लगा था, लेकिन वो मुझे कुछ करता इससे पहले ही नीलम और मेरी दोनों मजीद बहनें इसके साथ वही फेल अंजाम देने लगी थी जो थोड़ी देर पहले मैं इस कुत्ते के साथ दे रही थी। देखते ही देखते हम चारों बहनों ने इस कुत्ते के साथ वो कर लिया था जिसके बारे में कोई इंसान मरकर भी नहीं करना चाहता। ये जिस्म की आग इंसान को ऐसा कुछ करवाने पर मजबूर कर देती है। आज इस बात का अंदाजा मुझे हो चुका था। अगली सुबह हम चारों ही काफी थके हुए थे। अम्मा ने हमारे चेहरों पे थकान देखी तो कहने लगी, ऐसा भी तुम चारों ने रात को क्या कर लिया था जो तुम चारों की हालत इतनी खराब हो गई है? सब खैर तो है? अम्मा हमें मशकूक सी निगाहों से देख रही थी। वो माँ थी, वो हमसे ज्यादा हमें जानती थी, इसीलिए इनका ये सवाल करना बनता था। जबकि मैंने फौरन ही बात को संभाल कर घुमा दिया था। जबकि वो मुझे समझने के अंदाज में सर हिलाकर कमरे से चली गई थी। उनके जाने के बाद हम चारों ने ही सुख का सांस लिया था, क्योंकि अम्मा एक वाहिद थी जो हमारे चेहरे से ही हमारे कारनामे पहचान जाती थी। इसीलिए हम चारों ही बहुत ज्यादा इनसे खौफजदा हो गए थे। अब ये हरकत हम हर रात ही करने लगे थे। हम लोगों पर एक अलग ही जुनून सवार हो गया था। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था। हमें ये करते हुए तकरीबन 6 महीने हो गए थे। आज भी पहले ही मैं, इसके बाद नीलम और फिर एक और बहन, और जबकि सबसे छोटी बहन हमारी इस कुत्ते के साथ ये फेल अंजाम देने लगी तो अचानक इस कुत्ते ने हमारी छोटी बहन के साथ वो किया जिसके बाद हम चारों की एक साथ चीख बरामद हुई थी और यही से हमारी बर्बादी का आगाज हो गया था। क्योंकि इस कुत्ते छोटे ने मेरी बहन के नाजुक, मेरा नाम तबस्सुम है, मैंने जिंदगी की 27 बहारें देख ली हैं। मेरी एक जुड़वा बहन भी है जिसका नाम नीलम है। हम दोनों की आपस में बहुत बनती है। हमारी पैदाइश पर हमारे माँ बाप काफी खुश थे क्योंकि हम दोनों ही इनकी पहली औलाद में शामिल थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए मेरे माँ बाप के हालात खराब होते जा रहे थे, क्योंकि अब्बा एक दिहाड़ीदार मजदूर थे। अम्मा का खर्चा भी इनके जिम्मे था और इसके बाद हम जो दोनों पैदा हो जाने के बाद तो इनके हालात मजीद पेचीदा होते जा रहे थे। और इसके बाद मेरी तीसरी बहन पैदा हुई तो अब्बा को ख्वाहिश थी कि बेटा हो, और इसके बाद जब बेटी पैदा हुई तो हमारे हालात मजीद खराब हो गए। अब्बा ये सोच सोच कर हर वक्त हलकान रहते थे कि चारों बेटियों को वो कैसे रुखसत करेंगे। इनके पास तो इस वक्त एक वक्त की रोटी खाने के पैसे भी नहीं होते थे। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा था और हमारी जिंदगी मजीद बदतरीन होती गई थी। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सभी अम्मा को एक बात का ताना देते थे कि तुम्हारी चार चार बेटियां हैं, किस तरीके से इन सबको रुखसत करोगी? बेटा पैदा करती तो कुछ बात होती, बाप का बाजू बनते। अब्बा भी अम्मा को बेवजह ही तर्ज की खोड़ी खोटी सुनाते रहते थे। कुछ रोज बाद की अम्मा अब्बा ने एक कुत्ते को पाल लिया था और उसको अपना वो बेटा मानते थे और इसके साथ हर राजो न्याज किया करते थे। वो अब्बा का बहुत वफादार था। अब्बा हमें खाना खाने के लिए कुछ दें या ना दें, लेकिन अपने इस कुत्ते का बहुत ख्याल रखते थे। जब वो हमारे घर आया तो वो बहुत छोटा सा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो कुत्ता भी बड़ा होकर जवान हो गया था। हम बहनों की उम्रें अब शादी वाली हो गई थी। जिस तरह से एक मर्द के जज्बात होते हैं ऐसे ही एक औरत के जज्बात भी होते हैं, जिसकी कदर माँ बाप को करनी चाहिए। एक दो बार मेरे और नीलम के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन घर के हालात और हमारी हालत को देखकर हमारे मुंह पर ही मना करके चले गए थे। मैं और नीलम दिखने में तो बेहद खूबसूरत थे, लेकिन लोग आजकल बनावटी खूबसूरती को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। हमारा इखलाक और हमारी जिस्मानी खूबसूरती को किसी ने अहमियत नहीं दी थी, बल्कि जहेज की लालच में सब हमें रिजेक्ट करते जाते थे और नीलम बहुत ज्यादा परेशान रहती थी।
क्योंकि हम दोनों ही जवानी की दहलीज पर थे और ये एक ऐसा वक्त होता है कि जिसमें हर मर्द औरत को एक दूसरे की जरूरत होती है। वक्त अपनी ही रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था और अब मैंने अपने मुंह से ही अपनी अम्मा को अपनी शादी के हवाले से कहना शुरू कर दिया था कि अम्मा मेरी शादी करवा दो, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन अम्मा पहले तो शुरू में ही मेरी बातों को मजाक में ले जाती थी, लेकिन जब मैं संजीदा होकर ये बात कहने लगी तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि क्या फजूल की बात तुमने अपने दिमाग में बिठा ली हुई है। अब्बा के हालात देखो, घर को देखो, बहनों को देखो, क्या हर वक्त शादी शादी की रट लगाए रखती हो। लेकिन मैं अपनी माँ को अपने बारे में समझा ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो बस एक ही बात की गर्दान करती जा रही थी कि तुम्हारे अब्बा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हारी शादी करवाएं। मेरे बाद तो अब नीलम ने भी ये बात कहना शुरू कर दी थी और उसको ही देखकर हमारी छोटी बहनें भी अब शादी का मुतालबा करने लगी थी। मैं जानती थी ये सब कुछ मेरी वजह से ही शुरू हुआ है, लेकिन अब हम सब ही बड़े हो रहे थे। हम सबको जिस्मानी ख्वाहिशात पैदा हो रही थी, लेकिन अम्मा अब्बा की वजह से हम चारों बहनें ही इस खुशी से महरूम थी। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक ही गुजर रहा था और एक रोज मैं और नीलम चारपाई पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये रातें ठंड की थी, हम दोनों एक रजाई में थे। वो मुझे मोहल्ले की एक लड़की जिसकी अभी शादी हुई थी उसके हवाले से बता रही थी कि वो दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी पर दिल खोलकर खर्चा किया था। जबकि उसकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा रंजीता हो गई थी और अफसोस भरे लहजे में कहने लगी कि न जाने नीलम हम लोगों के दिन कब फिरेंगे और हमारी शादियां कब होंगी। हम कब अपने शौहर के घर जाकर सुकून से रह पाएंगे, और जो एक शादीशुदा लड़की की ख्वाहिश होती है। जबकि नीलम ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे दिलासा देना चाहा था, कोई बात नहीं, जब हमारे नसीब में होगा तो हमारी शादियां भी अल्लाह जल्द ही करवा देगा। लेकिन अचानक ही मेरे जिस्म में एक लावा सा भड़का था। मुझे न जाने क्या हुआ कि मैं नीलम के साथ ही गलत कार्य करना शुरू कर चुकी थी। जबकि नीलम हड़बड़ाकर मुझे दूर होना चाह रही थी, लेकिन मैंने नीलम की आंखों में देखा और जज्बाती लहजे में बोली, अल्लाह के लिए आज मुझे ना रोको, अगर तुमने आज मुझे रोका तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर उसका दिल भी पिघल गया था और हम दोनों हाथ पार करते चले गए। ये अमल हमने पहली बार किया था और इसके बाद जब हमारा दिल चाहता हम यही सब करते थे। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक ही तो गुजर रहा था और एक रोज सब कुछ तब्दील हो गया था, क्योंकि हमारी इस हरकत के बारे में हमारी छोटी बहनों को मालूम हो गया था। पहले तो उन्होंने हमें खौफ दिलाना चाहा कि हम माँ बाप को बताएंगे, लेकिन जब मैंने उनको भी इस खेल में शामिल किया तो वो लोग खामोश हो गई थी और देखते ही देखते हम चारों बहनें गुनाह की इस दलदल में पहुंच गए थे, जिसके बाद वापसी के सिर्फ हमारी मौत थी। और एक रोज हमारी जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन भी आ गया। मैं और मेरी बहनें आपस में यही घिनौना खेल खेलने में मसरूफ थे कि अचानक ही हमारे कमरे में अम्मा आ गई थी और उन्होंने आंखों से हमें सब कुछ वो करते हुए देख लिया था जिसकी कोई हद नहीं थी। पहले तो वो सख्ते की हालत में हमें देखती रही यकटक, लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया तो उसके बाद उन्होंने हमें धनक कर रख दिया था। अम्मा ने हमें बहुत मारा था और बहुत गालियां दी थी और खासकर मेरी चमड़ी उधेड़ के रखती थी और साथ ही ये भी कहा था कि अगर इतनी ही आग मची हुई है तो इस कुत्ते से बुझा ले। मेरी मासूम बेटियों को इस गंदे काम में शामिल कर रही है। और भी न जाने उन्होंने हमें क्या क्या बोला और फिर कमरे से चली गई। इस वक्त तो अम्मा चली गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में जो जहर उन्होंने भर दिया था वो मुझे बहुत कुछ उकसाने पर मजबूर कर रहा था। मेरे जहन कभी भी इस कुत्ते की तरफ गया ही नहीं था, लेकिन अब अम्मा की बात सुनकर मैं अपना इरादा कर चुकी थी। मैंने कई बार खुद को डपटा भी कि नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की मत मारी जाती है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैंने ये काम काफी छुप कर किया था, लेकिन इसके बारे में मेरी बहनों को मालूम हो गया था और जो चीज सिर्फ मैं करना चाहती थी इसमें सभी मुलव्वस हो चले थे और इस खेल में हम चारों बहनें शामिल हो गई थी। एक रोज हम चारों यही सब कर रहे थे कि इस कुत्ते ने जज्बात में बहकर मेरी बहन की हसास जगह पर अपने दांत गाड़ दिए थे, जबकि मेरी बहन दर्द से बिलबिला उठी थी। हम सब बहनों की तकलीफ से चीख निकल गई थी। हम सब ने जल्दी जल्दी अपने अपने कपड़े ठीक किए थे, क्योंकि छोटी की चीख से अम्मा अब्बा दोनों बाहर आ चुके थे। छोटी को तकलीफ में तड़पता हुआ देखकर अम्मा समझ गई थी कि यहाँ पर क्या हो चुका है। उन्होंने मुझे और बाकी और बहनों को सौ सौ गालियों से नवाजा था और जल्द से छोटी को अस्पताल लेकर भागे थे। लेकिन तकलीफ इतनी थी कि छोटी आधे रास्ते में ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। जब ये खबर हम तक आई थी मुझे तो ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही मौजूद ना हो। हम में से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। अम्मा अब्बा रोते पीटते घर आए थे और आते ही अम्मा ने मुझे मारना और गालियां देना शुरू कर दिया था कि तेरी वजह से मेरी गोद उजड़ गई है। मुझे उन्होंने हजार गालियों से नवाजा था, जबकि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम अपनी बहन खो चुके हैं। अम्मा की हालत काफी खराब हो गई थी, उसकी तदफीन हो चुकी थी, लेकिन मेरे लिए ये बात हजम करना काफी मुश्किल बात थी। हम बहनें भी आपस में बातचीत बंद कर चुके थे। अब्बा ने अगले ही दिन इस कुत्ते को बेच दिया था। मेरी अम्मा को अब मेरी शादी की जिद लग गई थी। वो किसी भी तरह से मुझे बस घर से चलता करना चाहती थी। मैं बहुत गुमसुम रहने लगी थी। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता था। छोटी की मौत ने हमें इतना दुख दिया था कि हम हंसना तक भूल गए थे। उन्होंने एक बहुत ही गरीब लड़के से
मेरी शादी तय कर दी थी। ये लड़का कुछ रोज़ पहले ही हमारे मोहल्ले में आया था और उसने कहीं मुझे पसंद कर लिया था देखकर, और मोहल्ले की एक औरत के ज़रिए मेरे लिए रिश्ता भेजा था। वो लड़का शक्ल-सूरत का ठीक ही था, लेकिन मानो-दौलत में कम था। मेरी अम्मा ने इस चीज़ को काफ़ी फ़िक्र नहीं की थी। इस लड़के ने जहेज़ लेने से भी इनकार कर दिया था। इन्हीं वजूहात की वजह से अम्मा फ़ौरन राज़ी हो गई थी। जब इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता लगा, तो मुझे अंदर ही अंदर खुशी हुई थी, लेकिन इस बात को भी मैं फ़रामोश जल्द ही कर गई थी कि कुछ रोज़ पहले मेरी बहन का इंतकाल मेरी वजह से ही हुआ था। पहले मुझे इस बात का बहुत दुःख था, लेकिन अपनी शादी की खबर सुनकर मैं जल्द ही इस अपनी खुशी में गुम हो गई थी। शादी काफ़ी सादगी से की गई थी और मैं रुखसत होकर उसके घर चली गई थी। लेकिन शादी की पहली रात ही मुझ पर क़यामत बनकर टूट पड़ी थी, क्योंकि वो लड़का कोई और इंसान नहीं था, वो एक कोठा चढ़ता था। उसने मुझे एक कोठे पर बिठा दिया था। वो कितनी ही बुरी सही, लेकिन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरी अम्मा अब्बा ने मुझे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। किसी को भी मेरी फ़िक्र नहीं थी। मेरी हालत अब काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। जिस्म की आग ने मुझे इतना बर्बाद कर दिया था कि मुझे कुछ रोज़ बाद ही एड्स की बीमारी हो गई थी, क्योंकि कोठे पर न जाने कौन-कौन सा मर्द मेरे करीब आया था, जिसको ये बीमारी लाहक थी, और उसके ज़रिए मुझे भी ये बीमारी लग गई थी। मैं बिस्तर पर मर्ग पर पहुँच चुकी थी। कुछ रोज़ बाद जब से मेरा निकाह हुआ था, वो मुझे एक सरकारी अस्पताल में छोड़कर भाग गया था, क्योंकि मैं अब इसके काम की नहीं रही थी। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ मेरी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी, और एक रोज़ मेरी निगाह अस्पताल के दूसरे बेड पर पड़ी, जहाँ पर एक लड़की बहुत ही अबतर हालत में मौजूद थी। मैंने जब गौर करके देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि नीलम थी, जो हमेशा मेरे हर खेल में शामिल रहती थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसको पुकार कर खुद की तरफ मतवज्जो करवाया, तो वो यकदम ही हैरान हो गई और गौर-गौर से मुझे देखने लगी। लेकिन जैसे ही उस पर यह बात आश्कार हुई कि मैं कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन तबस्सुम हूँ, तो वो भागकर मेरे करीब पहुंची और दीवानावार मुझे चूमने लगी। वो रोती जा रही थी और एक ही बात गर्दान करती जा रही थी कि तुम कहाँ चली गई थी। काफ़ी देर तक मैं उसकी दीवानगी पर देखकर मुस्कुराती रही। ऐसा लगता था जैसे मेरे जिस्म में वापस जान आ गई हो। अपनों का साथ ही ऐसा होता है। अभी मैं इसके शहर में ही गुम थी कि अचानक ही इसको न जाने क्या हुआ कि उसने घुमाता हुआ जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया, जिसकी ताब न लाते हुए मेरा चेहरा दूसरी तरफ घूम गया था। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा तो वो पुकारती हुई कहने लगी, तुम जिंदा क्यों हो? तुम मर क्यों नहीं गई? देखो, छोटी के बाद लाइबा भी चली गई इस दुनिया से, और अब मैं भी कुछ दिन बाद चली जाऊंगी। मैंने हैरान होकर उसके रूप को देखा, जबकि वो मेरे पास ही बैठ गई और रोने लगी। उसका रोना, उसकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। वो मुझे देखते हुए कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद लाइबा ने भी यही अमल एक आवारा कुत्ते के साथ करने की कोशिश की, और उसने भी जिस तरह छोटी को कुत्तों ने जख्मी किया था, इस तरह लाइबा के साथ भी हुआ। और उसने बहुत समझाया था कि अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बाहर भाग गई, और उसने बाहर जाकर ये काम आवारा कुत्ते के साथ कर लिया। और इसके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो छोटी के साथ हुआ था, और वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अम्मा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी मुझे और अब्बा को तनहा छोड़कर चली गई। कुछ रोज पहले मेरी तबीयत बहुत खराब महसूस हो रही थी। जब मैं एक सरकारी अस्पताल में अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे दिमाग का कैंसर है। जल्द या बदेर मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मैं तो दुआ करती हूँ मुझे जल्द मौत आ जाए, क्योंकि ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो रोती जा रही थी और उसकी बातें सुन सुनकर मुझे अपना दुख कम लगने लगा था। लेकिन जैसे ही उसको मेरी हालत का ख्याल आया तो पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। और जैसे जैसे मैं उसको अपनी जिंदगी के बारे में बताया, तो वो महज इतना ही बोली, ये अजाब कुदरत की तरफ से हम चारों बहनों के नसीब में आया है। बस अल्लाह ने जैसे इन दोनों को अपने पास बुला लिया है, हमें ही ऐसे बुला ले, वरना हम बहुत अजियत से मरेंगे। क्योंकि जबकि मैंने अल्लाह से शिद्दत से दुआ मांगी थी कि या रब मुझे मौत दे दे, क्योंकि मैं मजीद अजाब नहीं झेलना चाहती थी।